ब्रेक के बाद पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। इस चरण में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। शुरुआत वर्ल्ड व्यू से। And we'll talk about major international stories today. Today we are in conversation with Executive Editor of Star News, Mr. Anil Singh. Mr. Singh, talking about the first story which has made it to the front pages of most newspapers today, which is about the daughter of an Indian diplomat in New York. Now, we know that the story is of a wrongful arrest that she has accused the New York City government of, and claiming diplomatic immunity. She has filed a lawsuit against the New York City government of $1.5 million. But how do you look at the entire episode? Does it have the potential of turning into a major diplomatic standoff between the two nations? Absolutely not, because it's a case of respecting of liberty. We know that the biggest theme in the American Constitution is the respect for the liberty. Merely doing a complaint, कृतिका विश्वास did it the things. अमेरिकी संविधान में स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बड़ी बात है। उसके खिलाफ एक कार्रवाई की गई कि भैया आपने प्रिंसिपल को या टीचर्स को एक ऑब्सेशन मेल भेजा है। ये बात गलत साबित हो गई। उसने न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट के ऊपर $1.5 मिलियन का केस ठोक दिया, और गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव इट, बिकॉज अमेरिकी संविधान में जो सबसे बड़ी बात है वो लिबर्टी की प्रिजर्वेशन की बात है, और वो होके रहेगा, एंड वी शुड एक्नॉलेज इट। अनिल जी, लेकिन जो आरोप कृतिका विश्वास ने लगाए हैं जी, उन्होंने कहा है कि जो अश्लील SMS ईमेल भेजने की बात कही गई है, जिस चीनी लड़के ने ये काम किया है उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि कृतिका को हथकड़ियों के साथ बंद कर दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई, उसके साथ दुराचार किया गया, यहाँ तक कि उसे शौच जाने की भी परमिशन नहीं दी गई। जिस तरह का व्यवहार है, खासतौर से आपको लगता है कि कोई इसमें नस्ली कुछ बू आ रही है कि नस्ल भेद जैसे? देखिए, ये जो पुलिस की वर्किंग स्टाइल है वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो एक ही जगह है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो पता लगा, लेकिन उन्होंने किया। छात्रा है, कोई अपराधी नहीं है या आपने डिटेन नहीं किया है, एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, कोई इतना बड़ा आरोप भी नहीं था। जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया, कहीं ना कहीं जो है व्यवहार निंदनीय है, गलत है, और इसका खामियाजा न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, और दे आर रेडी टू पे फॉर इट। ये गलती उनसे हुई है, मान रहे हैं, और बाकी जो कल्प्रिट के लिए वहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही है। लेकिन भारत सरकार को कोई कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो एक राजनीतिक की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, वहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं या भारतीय जाते हैं, तो ये तो चीज ऑलरेडी अपनी कड़े रुख की बात को कह चुकी है। भारत सरकार उसके साथ है, और इस तरह के चीजों की भारत सरकार निंदा करती है। The embassy and the external affairs ministry, they have launched separate protests with the New York City government regarding this matter. So you're saying that it's a legitimate case of violation of liberty, and and it is the foremost thing in the US Constitution. Eventually, the New York City government will have to pay the fine that absolutely, and they will do it. Likewise, in England, they have the biggest respect for their property, individual property. Similarly, in US, the biggest respect is for the liberty. But there's no case for diplomatic immunity here. I mean, this liberty is for you whether you're a diplomat or you're not a diplomat. I mean, this argument between the Indian side and the American side about the status of diplomatic immunity, the difference in status of diplomatic immunity for ambassadors and consulate staff, it doesn't really hold much significance. Definitely, they have some privileges in the respective country, but the law will take its own course. Now, case is in the court, and court will do the justice with Kritika. Okay. And we are hopeful for it. Okay. So let's now move on from one city of New York, of America, to another. The Chicago trials, they continue to be making headlines as more and more revelations keep coming on from the trial that David Coleman Headley is facing. More and more names of ISI handlers of Tahavvur Rana and David Coleman Headley are coming up. How do you look at the trial? एक चीज़ फंडामेंटल हमें समझने की चीज़ है कि जो ये कोशिश वहाँ हो रही है, ये ट्रायल हो रहा है, ये सारी बातें अब जो कोर्ट में कही जा रही हैं ये कानून में एडमिसिबल हैं। अब गवाह इससे मुकर नहीं सकता है। ये बातें साबित हो चुकी हैं कि टेरर अटैक में पाकिस्तान का हाथ था, और इन कन्वर्सेशन से ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका के प्रति बहुत ही खौफनाक विचार रखने वाले पाकिस्तान का चेहरा सामने आ रहा है, और हेडली अब वहाँ एक तरह से सरकारी गवाह बन चुका है, और वो सारी बातें अपने जीवन रक्षा
को ध्यान में रख के कर रहा है और सारी सच्ची बातें बता रहा है। किस तरीके से वो इंडिया में आया, शिवसेना के आदमियों से कांटेक्ट किया, प्रोजेक्ट की बात की, किस तरीके से उसने कहा कि ISI का और अगला टारगेट नेशनल डिफेंस कॉलेज हो सकता है या इसके अलावा अक्षरधाम हो सकता है। बड़ी प्रोजेक्ट को अंजाम देने की इनकी कोशिश रही है। तो पाकिस्तान बिल्कुल इस तरीके से खुले तौर पे बेनकाब हो गया है। आने वाले दिन में कल जो गृह सचिव आ रही हैं अमेरिका की और गृह मंत्री चिदम्बरम उनसे बात करेंगे, एक भारत और अमेरिका की दूरियों को कम करने का एक सार्थक प्रयास है। अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान से उनका मोह बिल्कुल भंग हो चुका है और यही नहीं, अब उनको ये भी रियलाइज़ हो गया है इस खुलासे के बाद कि पाकिस्तान को जो पैसा अमेरिका देता था टेररिस्ट से लड़ने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल वो इस तरफ करते थे, इस रीजन में करते थे, टेररिस्ट को भड़काने के लिए, टेररिज्म को और हवा देने के लिए। जी, लेकिन जो वाकया निकल के आ रहा है, ISI का उसमें हाथ है, वहाँ की जो प्रजातांत्रिक सरकार है वो असहाय है, उसके हाथ से आर्मी और ISI की कार्यप्रणाली पूरी तरह से निकल चुकी है। ये इस इशू पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो निकल के आई है, रिचर्ड हेडली हमारे देश में आते हैं, दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े शहरों में, तमाम बड़े संवेदनशील जगहों पर वो जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों से, बड़े राजनीतिज्ञों से उनकी बातचीत होती है। जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं, लगता है कि अगर आपका रंग गोरा है और आपने थोड़ा नाम पश्चिमी देशों जैसा रख लिया है तो भारत में घूमना बड़ा आसान हो जाता है, या कहें उपमहाद्वीप में। देखिए, हेडली की बात है, उसकी माँ पाकिस्तान की थी, बाप अमेरिका का था, राणा पैदाइशी कैनेडियन सिटीजन है। आते हैं तो आते ही उसके चेहरे पे तो टेररिस्ट का ठप्पा नहीं लगा होता है। नहीं, लेकिन तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हम आम भारतीय या उपमहाद्वीप के लोग आते हैं कि किस तरह को, तो हम तमाम तरह की अपनी सुरक्षा चीजों को अपनाते हैं। चूंकि एक आदमी आया